Hello everyone. Good evening. Welcome to the session about how eyes work and what is the structure of human eye, what are different disorders, and how there are some medical. Sorry, Shweta, is there anything? No, no, go ahead. Okay. Shweta, can we have on mute, please? Just a minute. Yeah, go ahead. Okay, thank you. So, as we had some discussion yesterday, this is the day two, and straightforwardly moving towards the topic. And for that, I would like to welcome our guest, Dr. Hitesh. And as we have discussed about his introduction, he is an Ayurvedic specialist, and currently he is working as an assistant professor. And he himself is a patient of retinitis pigmentosa (RP). So he has gone through the path and the hurdles that one face in such kind of disorders. So he gives an insight which is practical and as a guidance, it should work for you. And so I would like to request Hitesh sir to address the audience. Yeah, thank you. Good evening, everyone. And yeah, it's my pleasure to be here on the platform of Divyability Foundation in front of all of you to give my awareness talk regarding eye diseases that threatens the sight. Yeah, yesterday I would just have a quick recap. We studied about the different diseases of human eye which can cause multiple eye sight threatening conditions. ऐसी बीमारियां जिनसे पूरे आंखों की रोशनी जा सकते हैं, ऐसी बीमारियों के बारे में हमने कल देखा था. Eyes are divided into anterior and posterior segment. And now, when it comes to treatments, most of the diseases in the anterior segment, like I mentioned, cataract, myopia, or corneal opacity, are easily curable. And any blindness caused due to this anterior segment is reversible. Whereas the biggest challenge for ophthalmologists is the posterior segment. Now, let us have some discussion regarding the therapies, the options which are available, as well as the current researches which are conducting all over the world, which are being conducted, and the coming prognosis. Prognosis means what can happen, what are the changes we can expect in the near future regarding this diseases of posterior eyes. Okay, let us recap the diseases of posterior eye that we discussed yesterday. Retinitis pigmentosa is the most common one, macular dystrophy, optic nerve atrophy, and rod cone dystrophy or cone rod dystrophy, and posterior subcapsular cataract. See, all these diseases we just knew about in the past session or the previous session. Now, I would be focusing on the treatment of few of these diseases. One thing I would like to clear in the outset of this awareness talk that I would not be going to recommend you any of the therapies or any of the medicines. This would not be the right platform to prescribe you anything. This platform is solely for sensitizing you, to make you aware and to educate you. Okay. Having said this, let us know about the available treatment options for the eye diseases of posterior segment. To decide which therapy can be most applicable for any one of you or any of the diseases, the first thing which is essential is to undergo proper diagnostic techniques. पहले जांच की जरूरी होता है. रोगमादौ परीक्षेतः तदोनंतरम औषधम is a classical slogan which is said in ancient Indian medical text, which means first one have to undergo proper examination of the disease, then only we can talk about treatment aspects. So, as you all know, whenever you go to any of the ophthalmologists, there would be 3 to 4 common tests which will be conducted. I will take 5 to 10 minutes to explain about those diagnostic techniques. मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने शायद देखे होंगे, एक चार्ट रहता है, आपको कुछ दूर पर बिठा के उस चार्ट में से पढ़ने के लिए बोला जाता है.
That chart is called as Snellen's chart, and this test is called as visual acuity test. और ये टेस्ट क्यों करते हैं? This test will measure your refractive error or your टोटल एबिलिटी ऑफ साइट। आप कितने देख सकते हो और आपको देखने में क्या मुश्किल है, दोनों एक ही टेस्ट से पता चल जाता है। आप शायद याद कर सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है पहले, वहां पे 6 से 7 लाइन रहते हैं, तो उसके बाद आपको एक चश्मा पहनाकर अलग अलग ग्लास और लेंसेस को चेंज करते करते आपको फिर से कोशिश करने के लिए बोला जाता है। यू विल बी आस्क्ड टू ट्राई रीडिंग द चार्ट अगेन एंड अगेन बाय टेस्टिंग द lenses. So this spectacles which will be given to you is an assistive device which can decide your refractive power. तो यहाँ से आपका कितना पावर की चश्मा लगाना है वो पता चलता है। कभी कभी कोई भी चश्मा लगाने के बाद भी अगर कोई पेशेंट एक भी लाइन नहीं पढ़ पा रहा है और ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, then it is a confirmatory signal to doctor that the problem is in the posterior segment, not in the anterior segment. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, एंटीरियर सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लेंस की जरिए या ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, दैट ए पेशेंट कैन बी सस्पेक्टेड फॉर एनी डिसीजेस इन द पोस्टीरियर सेगमेंट। आप जब चश्मा पहनने के बावजूद चार्ट में से एक भी लाइन या 2 लाइन पढ़ नहीं पाते हो, then you will be advised to undergo 2 more tests. The other is intraocular pressure test. डॉक्टर विल ऑफन आस्क टू पुट योर चिन ओवर ए फ्रेम, और वहां पे आपका पूरा फेस को, माथे को एक फ्रेम रहता है, उसके ऊपर टच करके अपना चिन को एक अलग से डेडिकेटेड स्लॉट रहता है, वहां पे बिठा के डॉक्टर आपका आंखों को चेक करता है। एक आई ब्लो आपके आंखों के सामने आती है, सो दैट इज टू मेजर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। दिस टेस्ट इज टू डन टू इवेल्युएट योर इंटरनल प्रेशर विद इन द आई। और ये अगर पॉजिटिव आया तो आपके अंदर ग्लोकोमा होने की चांसेस रहता है। ग्लोकोमा वी डिस्कस्ड यस्टरडे इज अ कंडीशन वेयर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक्सीड्स मोर देन 21 mmHg, और ये ग्लोकोमा आपकी रेटिना को खराब कर सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस होने के बाद ग्लोकोमा में लेजर थेरेपी या ऑपरेशन थेरेपी दोनों से भी कुछ हद तक आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं। लेकिन ये लेटर स्टेज में, मतलब जब बहुत पुराना हो गया बीमारी, तब ऑप्टिक नर्व्स भी डैमेज हुए होंगे, तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं ग्लोकोमा में। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर ग्लोकोमा इज डायग्नोस्ड बाय डिटेक्टिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब आप ये भी याद कर सकते होंगे कि आपके आंखों के अंदर एक स्ट्रिप रखते हैं डॉक्टर या ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। एक छोटा सा स्ट्रिप रहता है, एक पेपर की टुकड़ा जैसा, उसको आंखों के अंदर रखने के लिए बोलते हैं, और कितना वेट हुआ उसके जरिए से, बाय यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन आल्सो मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये हो गया इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मापने की 2 तरीके। और यहां पर भी पॉजिटिव मिला, देन यू विल बी टेकन फॉर फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी भी नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। फंडोस्कोपी इज अ टेस्ट विच कैन डायरेक्टली विजुअलाइज रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। ये जो पर्दा बोलते हैं हिंदी में, तो वो रेटिना को और ऑप्टिक नर्व्स को विजुअलाइज करने के लिए, सीधे देखने के लिए हमको ये टेस्ट करना पड़ता है, फंडोस्कोपी। इस फंडोस्कोपी में आपको पहले ड्रॉप लगा के बिठाया जाता है और प्यूपिल को डायलेट किया जाता है। प्यूपिल का मतलब जो स्पेस है लाइट रेस को आई के अंदर जाने के लिए जगह, उस जगह को प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल जब बढ़ता है तो ज्यादा लाइट आंखों की पीछे तक पहुंच सकता है। तो इस प्यूपिल डायलेटेशन करने के बाद डॉक्टर अपने हेड के ऊपर एक स्लिट लैम्प बोलते हैं उसको, स्लिट लैम्प पहनकर वहां पे जिससे एक बीम ऑफ लाइट, फोकस्ड लाइट, हाई प्रेशर वाला लाइट निकलता है। उस लाइट के जरिए, लेंस की जरिए डॉक्टर खुद रेटिना को विजुअलाइज करता है। डॉक्टर विल यूज दैट स्लिट लैम्प टू गिव short beams of light which can enter into the inner portion of the eyes where retina is visualized. यहाँ से मैग्नीफायर हाथ में पकड़ के डॉक्टर आपके आंखों से ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं की तरफ देखो, बाएं की तरफ देखो, तो ऐसा हर तरफ आपके आंखों को या आईबॉल को घुमाकर रेटिना को विजुअलाइज करते हैं। यहां से आपका कंफर्म होता है कि आपके रेटिना में प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपके रेटिना में बोनी स्पेक्यूल्स है या पिगमेंटेशंस है, या रेटिना डिजेनरेट हो रहा है, या रेटिना डिटैच हो चुका है,
मैक्यूला में कुछ गड़बड़ है, ऑप्टिक नर्व्स में कुछ गड़बड़ है, जो भी पोस्टीरियर सेगमेंट का प्रॉब्लम्स होता है वो सबसे पहली बार यही पे कंफर्म होता है फंडोस्कोपी के जरिए से. सो दिस इज द मोस्ट थर्ड मोस्ट क्रूशियल टेस्ट विच इज बीइंग डन इन द ओपीडीज. तो उसके बाद अगर यहाँ पर भी डॉक्टर्स को ये देखने को मिला कि आपके रेटिना जल गए हैं, आपके रेटिना डिजेनरेट हो चुके हैं, देन डॉक्टर वांट टू नो इन स्पेसिफिक कि क्या रेटिना में, तो हमने कल जाना कि बहुत अलग अलग पार्ट्स है, रॉड्स, कोन्स, मैक्यूला, फोविया एंड ऑप्टिक गैंग्लियंस, ये सारी चीजें रेटिना में होते हैं. तो उनमें से खास तरीके से कौन सी पार्ट है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको जानने के लिए वी विल बी डूइंग अनदर टेस्ट, दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट. शायद आप लोगों में से भी बहुत लोग कराए होंगे, दैट्स कॉल्ड ERG, electroretinography. In this electroretinography, eyes are stimulated with different types of lights and electrical changes आंखों के अंदर जो भी होते हैं उसको measure करते हैं. And if you have researched about this, you will definitely be knowing A wave, B wave, C wave, D wave करके. जैसे ECG में PQRS वेव बनता है, ऐसा हमारा आंखों के अंदर जो ERG करते हैं उस पे ABCD वेव बनता है. जब ये ABCD वेव फ्लैट निकलता है तब ये नतीजा है इसका कि रेटिना रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट retina is not responding. In most of the retinal diseases, if you go and check your ERG reports, there your either your curve ABCD जो ग्राफ है वो फ्लैट रहता है या उसमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द डायग्नोस्टिक्स विच आर डन. सो मान लीजिए ERG भी आपका पॉजिटिव निकला, there is some problem in retina or optic nerve or macula. It can be retinitis pigmentosa, macular degeneration, Stargardt's disease, Usher syndrome. बहुत सारी चीजें हैं, रॉड डिस्ट्रोफी, कॉनरॉड डिस्ट्रोफी, जो भी वजह हो सकता है. आपका अगर रेटिना या ऑप्टिक नर्व्स खराब हो गया है तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक ही रहता है. I will, I repeat it again. It might be any of the diseases which involves retina, optic nerve, the different parts of retina like rods, cones, macula, fovea, anything for that sake, treatment protocol same रहता है. और आपने शायद ये भी सुने होंगे कि आई विल कैटेगराइज दिस ट्रीटमेंट इन 5 हेडिंग्स फॉर द इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसको आसानी से समझने के लिए मैं उसको 5 डिफरेंट हेडिंग में बताऊंगा. सबसे पहला मोस्ट प्रॉमिसिंग थेरेपी जो हो सकता है वो जीन थेरेपी है. और उसके अंडर जीन थेरेपी में 2 अप्रोच है. पहला अप्रोच है स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन, दूसरा है जनरलाइज्ड जीन थेरेपी. इसके बारे में मैं बाद में इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा. हमारा दूसरा अप्रोच होगा स्टेम सेल थेरेपी. द फर्स्ट वन इज जीन थेरेपी. उसके अंदर भी 2 तरीके हो सकता है. द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक जीन थेरेपी, द सेकंड वन इज जनरलाइज्ड जीन थेरेपी. द सेकंड वन इज स्टेम सेल थेरेपी, और we will discuss about it in detail in the later hour of this session. The third approach would be neuroprotectors. इसके बारे में भी हम जानेंगे. Fourth approach would be prosthetic retinal implant, और रेटिनल प्रोस्थेट्स भी बोलते हैं. जिस प्रकार लोकोमोटर डिसेबल लोगों में हाथ और पांव को आर्टिफिशियली बना के इम्प्लांट किया जाता है, ऐसा ही कुछ रिसर्चर्स चल रहे हैं जिससे कि रेटिना को भी आर्टिफिशियली बना के बाहर से आंखों के अंदर इम्प्लांट किया जाए और उसको चेक किया जाए कि ये कितने हद तक मदद कर सकता है. दैट्स कॉल्ड एज रेटिनल प्रोस्थेट. द लास्ट एंड फिफ्थ अटेम्प्ट कैन बी अल्टरनेटिव मेडिसिन, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेडिकल परंपराएं हैं हमको देखने को मिलता है. आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी, यूनानी, ये सारे चीजों को इकट्ठा मिला के in the last we can discuss it as alternative approaches. Now let us see them one by one. The first one is gene therapy. Gene therapy का मतलब आप सभी ने जान गए होंगे. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और कोई भी रेटिनल डिसीज जेनेटिकली माना जाता है. अगर आपके रेटिना डिसीज जेनेटिक है और आपने जेनेटिक काउंसलिंग करवाया है, जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाया है और ठीक से ये पता किया है कि आपके अंदर जो जीन डिफेक्ट है वो कौन सा है, तो आपको बता दूं कि देर आर हंड्रेड्स एंड एज ऑफ नाउ देर आर 260 जीन्स विच कैन कॉज ए सिंगल सेम डिसीज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. सिर्फ एक ही डिसीज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को 200 से भी अधिक अलग अलग जीन्स कॉज कर सकते हैं. तो ट्रीटमेंट से पहले
especially in the case of gene therapy, knowing which gene is causing the disease is very, very essential. Without knowing that, we cannot undergo this gene therapy. That is the reason why most of the doctors are now recommending to undergo gene testing. तो मान लीजिए आपका जीन टेस्टिंग हो गया, आपको पता चल गया कि आपका जीन म्यूटेशन जो हुआ है वो कौन सा जीन है। हालांकि अभी तक सारे जीन्स का नाम हमने नेमिंग नहीं किया है। वी हैव नॉट नेम्ड ऑल द डिसीजेस। वन ऑफ द फेमस few to quote few are RPE65, which is very famous and known to everyone. That is one of the gene which can cause retinitis pigmentosa. Along with this, there are other genes like USH-A2. USH-A2 can cause Usher syndrome. वो भी RP का एक सबटाइप है। RP1, RP2, RPGR. These are the other common genes which can cause retinitis pigmentosa. तो आपने जीन टेस्ट करा लिया, आपको ये पता चला कि कौन सी जीन की म्यूटेशन के जरिए आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है, then you can just check whether there are any gene treatments available for this and you can undergo that treatment. And as of now, as I was searching it even today in the afternoon, there is only one gene therapy which is approved by FDA. FDA is Food and Drug Administration Authority of USA, United States of America. वो है लेक्सटर्ना इंजेक्शन। लेक्सटर्ना इंजेक्शन के बारे में मैं थोड़ा और बता दूंगा आपको। एक जीन थेरेपी है, ये सिर्फ और सिर्फ RPE65 पे ही काम करेगा, बाकी जीन म्यूटेशंस पे ये काम नहीं करेगा। तो मैंने बताया था कि ऐसा बहुत सारे 100 से भी ज्यादा 200 से भी ज्यादा जीन्स है जिनके जरिए RP हो सकता है। उनके अंदर भी अगर आपका जीन टेस्टिंग कराने के बाद ये निकला कि आपके जीन जो म्यूटेशन हुआ है वो RPE65 है, तभी आप ये लेक्सटर्ना इंजेक्शन की थेरेपी के लिए जा सकते हो। लेकिन ये आज तक इंडिया में आया नहीं है। इवन आई हैव कॉन्टेक्ट्स इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, वहां पर भी पूछताछ होने के बाद भी ये अपडेट, आज का अपडेट ये रहा है कि इट हैव नॉट एट एंटर्ड इंडिया। और ये इंडिया में आने के बावजूद ICMR is a body in India which is the apex body which will approve drugs. जैसे यूएसए में FDA बोला, मैंने अभी FDA ने अप्रूवल दे दिया है यूएसए में यूज करने के लिए, ऐसा ही इसको इंडिया में यूज करने के लिए ICMR और CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करके एक अथॉरिटी है हमारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ करके DGH करके एक यूनियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट पोस्ट है, उनकी तरफ से अप्रूवल ग्रीन सिग्नल मिलना होगा ये वैक्सीन नहीं बोल सकते, इस थेरेपी को इंडिया में यूज करने के लिए। देन दिस इज ऑल अबाउट द रीसेंट अपडेट रिगार्डिंग जीन थेरेपी। इसके अलावा कोई जीन थेरेपी का सक्सेसफुल अपडेट्स नहीं है। हालांकि जैसे मैंने बोला, अलग अलग जीन्स के नाम लाइक USH-A2 जीन और RPGR जीन, इन सभी जीन के ऊपर भी जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, वो लोग रिसर्चेस कर रहे हैं। इसका क्लिनिकल फेज 2 और फेज 3 में ट्रायल चल रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट देयर रिजल्ट्स इन द नियर फ्यूचर। अगर ये सक्सेसफुल निकले और इन ड्रग्स के लिए भी FDA अप्रूवल मिल गया, तब ये मार्केट में आ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आई कैन कैलकुलेट इट मिनिमम रिक्वायर्स मोर देन 2 to 3 years टू गेट इट इनटू मार्केट। और मार्केट में आएगा वो सबसे पहले USA और UK में आएगा। उसके बाद 5-6 साल होने के बाद इंडिया डजंट हैव दैट मच ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च बेसिस, तो इसलिए वहां पे अप्रूव होने के बाद, वहां पे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद इंडिया में आने के लिए और 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। So this is about specific gene therapy. And I was also telling about non-specific gene therapy, which is also called as generalized gene therapy. Generalized gene therapy का मतलब है, भले ही आपका जीन म्यूटेशन कोई भी हो, लेकिन क्योंकि मैंने बोला ये हेटेरोजेनियस डिसीज है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, स्टारगर्ड डिसीज हो, मैकुलर डिजेनरेशन हो, तो हर एक जीन पर रिसर्च करते रहना कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट आर आल्सो बिहाइंड सच रिसर्चेस। वो डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन जीन फिर भी वो काम करे। तो ऐसा एक है, एक रिसर्च चल रहा है, इसका नाम है ऑप्टोजेनेटिक्स। ऑप्टोजेनेटिक्स इज अ फील्ड which will act irrespective of the specific genes. इसको generalized gene therapy बोलते हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब हमारा rods and cone cells और retina degenerate हो जाते हैं, they will try to induce some proteins into our eyes
into our posterior part of the eye और into the retinal layer, ताकि वो प्रोटीन लाइट को ऑब्जर्व करके लाइट मैसेजेस जो है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाए. So this is still under research. There can be, positive results from this research, this optogenetic research in the near future. 2-3 साल में कुछ अगर गुड न्यूज मिल सकता है आरपी पेशेंट वालों को, तो वो ऑप्टोजेनेटिक की तरफ से मिल सकता है. So this is all about genetic therapy in brief. Then coming to stem cell therapy. स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानने से पहले आप सभी लोगों को जानना जरूरी है कि स्टेम सेल क्या होता है. मोस्ट ऑफ यू ऑल नो, आई नो इट. स्टेम सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. जैसे कि बॉडी के अंदर बहुत तरीके का, अलग अलग तरीके का सेल्स होता है. सेल्स का खुद का अपना, देयर इज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सेल एंड देयर इज अ स्पेसिफिक फंक्शन डेसिग्नेटेड टू एवरी सेल्स. जैसे आपने आमतौर पे सुने होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. तो आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स. ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो हमारे खून के अंदर रहते हैं. ये बॉडी की हर कोने कोने को कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने की काम करते हैं. They are specialized to reach oxygen to every part of our body, and they will also carry carbon dioxide and deoxygenated blood from every part of our body and reach it to lungs and hearts. तो उसी प्रकार आंखों के अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था या डिस्कस किया था. रॉड सेल्स, स्पोन सेल्स, फोविया, मैक्यूला एंड ऑल. तो स्टेम सेल में हम क्या करते हैं, ऐसी सेल्स को इंड्यूस करते हैं या इंजेक्ट करते हैं. इट इज कॉल्ड एज इंट्रा रेटिनल इंजेक्शन. एक इंजेक्शन के जरिए रेटिना तक कुछ स्टेम सेल को हम पहुंचाते हैं. या इंट्राविट्रियोस इंजेक्शन, एक विट्रियोस फ्लूइड करके रेटिना के पास एक फ्लूइड होता है. जिस पेशेंट के अंदर भी रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है या रेटिना पूरी तरीके से डिजेनरेट हुआ है, तब हम इंट्राविट्रियोस इंजेक्शन के जरिए स्टेम सेल को अंदर पहुंचाते हैं. और ये स्टेम सेल की एक स्पेशल एबिलिटी होता है कि वो जहां पर भी आप पहुंचाएंगे और वहां के जो सेल्स होते हैं, ऐसा ये सेल उनके काम करने के लिए लायक बन जाते हैं. दे विल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक फंक्शन इनटू द सेल वेर एवर वी हैव इंड्यूस्ड देम. तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर दूं तो आप लोगों ने शायद सुने होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और टॉटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. ये सब नाम आप शायद जरूर सुने होंगे. तो जब भी एक इंसान पैदा होता है तो वो इनिशियली सिर्फ एक सेल से ही हम सबका जन्म हुआ है. टू मेक इट सिंपलर अगेन, all of us have our birth which is initiated from a single cell that is called spermatocyte. एक स्पर्म एक सेल है जो पिताओं से मिलता है, और एक ओवम करके दूसरा सेल है जो माताओं से मिलता है. इन दोनों को गैमेट बोलते हैं. तो पूरे हमारा बॉडी, हमारा आंखें, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे किडनी, हमारे लिवर, हमारे स्प्लीन, सारी चीज सिर्फ ये एक सेल से बना है. तो साइंटिस्ट लोगों को लगा क्यों ना हम इस एक सेल को पकड़कर इसमें जो भी कंपोनेंट है जो आंखों को बनाता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर से आंखों में डाल देते, तो क्या नया आंख, नॉर्मल वाला आंख बन सकता है. सो दिस देयर वाज सम स्टडीज कंडक्टेड regarding this, and this itself is called as stem cell therapy. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मतलब होता है जब बच्चे माँ की गोद में रहते हैं, जन्म के तुरंत बाद जो गोद से प्लाजेंटा करके एक सेल निकलता है उसको लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. तो जब भी इंसान के लाइफ टाइम, मान लीजिए कोई किसी का जन्म 1995 में हुआ, अगर वो अगले 60 या 80 साल तक जिंदा रहता है तो उसकी नाम से उसके जन्मदिन के दिन जो भी बाहर निकला था माँ की गर्भ से या फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ द मदर, उसको बचा के रखा जाता है. जब भी उसको थ्रू आउट द लाइफ जो भी बीमारी होता है उसको ठीक करने के लिए उस स्टेम सेल को यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ये आजकल इंडिया में इतना पॉपुलरली प्रैक्टिस नहीं किया जाता है. दिस इज ओनली अंडर रिसर्च. दिस इज प्रैक्टिस्ड इन यूएसए, यूके एंड अदर डेवलप्ड नेशंस. इंडिया में जहां तक मेरी नॉलेज है, वी डोंट प्रिजर्व प्लेजेंटा. वी ओनली यूज प्लूरिपोटेंट सेल्स जो कि हमारे बोन मैरो के अंदर रहता है. सो यू माइट हैव इवन हर्ड ऑफ दिस. ब्लड कैंसर में अक्सर बोन मैरो निकालकर बोन मैरो को थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि ब्लड कैंसर की पेशेंट्स में अच्छे ब्लड सेल्स बन पाए. ब्लड कैंसर में हमारा जो नॉर्मल ब्लड रहता है वो अपने आप खो लेता है. तो टू क्रिएट नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स,
bone marrow therapy is used. So similar therapy was tested or experimented over human eye कि हम बोन मैरो निकाले और वहां पे जो भी कंपोनेंट रेटिना को बनाएगा उसको फिर से रेटिना में डाल देने से क्या हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो इनिशियली दिस एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, लेकिन इन लॉन्ग रन शायद आप में से बहुत लोग भी होंगे जो स्टेम सेल थेरेपी करा भी है. बहुत पैसा भी लगता है इसके लिए. कभी कभी 2 लाख 4 लाख लग जाता है सिर्फ 5-6 सिटिंग के लिए, 5-6 सिटिंग्स ऑफ स्टेम सेल इंजेक्शन के लिए. लेकिन एज ऑफ टुडे, एज ऑफ द रिसर्च पेपर्स विच सेज इट इज नॉट येट ए सक्सेसफुल थेरेपी विच कैन रिवर्स योर साइट, रिवर्स योर विजन. ये कुछ इनिशियल डेज में अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन धीरे धीरे 2 साल 3 साल बाद आपका विजन फिर से घट जाता है. सो दिस इज अबाउट स्टेम सेल थेरेपी. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, आई वाज टेलिंग न्यूरो प्रोटेक्टर्स. आजकल हमारे सोशल मीडिया और ग्रुप में एक चीज बहुत चर्चा पे है कि विटामिन ए सप्लीमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट. मैं ऐसा ही सुन रहा था कुछ दिन पहले, कोई ऑडियो भेजा था कि एंटीऑक्सीडेंट एसिटाइल सिस्टेन करके एक ड्रग है, उसको लेने से आरपी में क्यूर हो जाता है. हालांकि ये भी प्रूव्ड थेरेपी नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की मानना है कि दे हैव फाउंड आउट इन देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस कि रेटिना जो डिस्ट्रक्शन होता है वहां पर ऑक्सीजन की कमी रहता है. तो ये एंटीऑक्सीडेंट को वहां पर भेजने से ऑक्सीजन कंजम्पशन घट जाता है और आपके रेटिना डिस्ट्रक्ट होने से कुछ हद तक रोक सकते हैं. ये भी एब्सोल्यूट थेरेपी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट की तरीका है. हाँ, ये कुछ हद तक ही काम करता है, लेकिन we cannot rely on this therapy of antioxidants and it is not yet proven in terms of any scientific papers. ऐसा एक भी थेरेपी को ट्रीटमेंट तभी माना जाएगा जब इसके ऊपर कोई साइंटिफिक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो. मैं सर्च कर रहा था, इसके ऊपर सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं. रिव्यू आर्टिकल्स का मतलब है सिर्फ गेसिंग और डॉक्टर ऐसा ही कुछ कुछ पॉस्टुलेशंस कर रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स इसके ऊपर नहीं हुआ है. क्लिनिकल ट्रायल 4 स्टेजेस पे होता है. क्लिनिकल ट्रायल लेवल 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4. जब भी कोई दवाई चारों स्टेज निकाल कर बाहर आते हैं, तब भी हम उसको एफडीए अप्रूव्ड थेरेपी मान सकते हैं या क्लिनिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट मान सकते हैं. तो ऑल दीज विटामिन ए सप्लीमेंट्स, विटामिन सी सप्लीमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी स्ट्रेस ड्रग्स, ये सारी चीज कुछ हद तक काम मदद कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट proclaimed treatments as of now. This is about the third category which is neuroprotectors. So अभी तक हमने 3 चीजों को देखा है. एक जीन थेरेपी, within that specific therapy as well as general gene therapy. Also we got to know about stem cell therapy. The third one is neuroprotectors. The fourth one is about prostates, retinal prostates. retinal prostates के बारे में भी कुछ दिन पहले एक न्यूज में चर्चा था कि एलन मास्क ने अपना न्यूरालिंक, जो उसका कंपनी है, उसके जरिए ऐसा एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट बना दिया है. कोई एक चिपसेट है, उसको ब्रेन में डाल दिया जाएगा तो सबको रोशनी आ जाएगा. हाँ, ये रिसर्च पे अभी चल रहा है. there is also one more similar kind of product which is under research, that is called as second sight. आपने शायद second sight के नाम भी सुने होंगे. वो एक आर्टिफिशियल रेटिना है. इसमें क्या किया जाते हैं, आई को ऑपरेट करके जहां पर रेटिना डिस्ट्रक्ट हुआ था वहां पर फोटो सेंसिटिव एपिथेलियल सेल को आर्टिफिशियली बना के डाल दिया जाते हैं. दिस इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स और चिपसेट्स. ये क्या काम करेगा, लाइट्स जो भी आंखें अंदर तक पहुंचाएगा, उस लाइट्स को, उस इमेजेस को रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाएगा. और ब्रेन में एक और इसका कंटिन्यूड न्यूरल लिंक रहेगा, वो डिकोड करके ब्रेन को बताएगा कि आपके आंखों के सामने क्या है. So this is one of the a very revolutionary thought, a very revolutionary treatment aspect which is still under research. और इसको आने के लिए मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 साल हो ही जाएगा इंडिया में आने के लिए. because the external softwares that we use, NVDA, JAWS, or Envision glasses
स्मार्ट ग्लासेस, मेटा ग्लासेस, ऑल दीज थिंग्स, ये चीज भारत को आने के लिए बहुत सालों लग गए। हालांकि ये ऐसी चीजें भारत में नहीं, यूएसए और यूके में बहुत पहले से ही मौजूद है। और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑटो पायलट कार्स ऑफ टेस्ला। ये भारत में तो मुझे लगता है 15-20 साल तक आ ही नहीं पाएगा। So this is how the technology works. We have to accept it. Now coming to the last part about complementary alternative medicines. Complementary alternative medicines में आपने शायद सुने होंगे, कोई तो है उज्जैन में या चंडीगढ़ में या केरला में। ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स देते हैं और ऐसा क्लेम करते हैं कि हम आपका विजन को ठीक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जो विजन घट रहा है उसको रोक सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी कोई प्रूवन क्लिनिकल पेपर्स नहीं है, होंगे भी फिर भी बहुत कम है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। इनका दावा करने की जो बेसिस है वो एक ही है कि ये एंशियंट मेडिकल टेक्स्ट में लिखा गया है कि ऐसा बीमारियां होता है तो ऐसा दवाइयां लेने से काम करेगा। तो इसके ऊपर जस्ट based on this ancient texts, doctors are claiming that these therapies will work in the retinitis pigmentosa. But in the current, medical scenario, in the current scientific world, we can accept any treatment only when the treatment undergoes rigorous clinical trial. वो क्लिनिकल ट्रायल करना होगा, क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, उसके बाद ही हमको किसी भी चीजों को ट्रीटमेंट के नाम पे माना जाएगा। हालांकि ये भी सच है कि आयुर्वेदा में कुछ थेरेपीज है, जैसे कि अक्षितर्पणा, पुटपाका, अंजना, एंड नस्या, बस्ती। आई हैव अंडरगॉन ऑल दीज थेरेपीज। मैं पिछले 10 साल से एंटायरली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा पढ़ाई 3-4 अलग अलग जगह से हुआ है, तो हर जगह जहां पर भी मैं जाता हूँ वहां पर एक अलग से डिपार्टमेंट रहेगा। उसको बोलते हैं शालाक्य डिपार्टमेंट। आपने जो भी आयुर्वेदा ट्राई किया है उनको पता होगा। शालाक्य इज द टर्म विच इज यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑप्थाल्मोलॉजी। जैसे ऑप्थाल्मोलॉजी में नेत्र रोग की शिक्षा दिया जाता है और चर्चा किया जाता है, ऐसा ही शालाक्य तंत्र एक आयुर्वेद का ब्रांच है, जहां पर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आपकी आंखों की स्वास्थ्य को मदद कर सकता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इट कैन हेल्प द हेल्थ ऑफ योर आइज, and we cannot directly claim that it will reverse your vision, or it can stop the progression of the disease, or even it can slow down the progression of disease. ऐसे क्लेम करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट रिसर्च एविडेंसेस नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ पेशेंट्स को जरूर देखा हूं जिनको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के बाद फायदा मिला हुआ है। So this is all about the therapies which are available as per my knowledge. Anyway, I make it clear. Even my knowledge is limited. I am a person with scientific temper. I am a person who loves doing researches. I have already done 5 to 6 clinical researches within my career during COVID lockdown and all. तो मैं हर बार कोशिश करने की ये जांचने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या हो सकता है, ये ट्रीटमेंट कब तक यहाँ पे आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल in this session. Now let us open our stage for queries. Let us have some sort of discussions. If anybody who have any queries or want to know more about any therapies, they can ask. And one thing, this is a request from my side. If you want to ask anything about yourself or very individualistic consultation and all, I will definitely share my number. उसको आप अलग से privately कर सकते हो. Only if there are any generalized doubts, then only ask it here in the platform. Yeah, over to Tarushi. Thank you. Before that, I just want to make it clear. Please raise your hand. Whosoever have the doubts, I'll announce the name. Then I think that will be in a smooth way, right? Hello, am I audible, Shweta? Yes, ma'am. Yes. Okay, so as Hitesh sir said, he will be taking the doubts, and please keep your doubt bit generic. And as Shweta mentioned, please raise your hand, and as per that, she will be keeping you on unmute. Yes. Okay. So first we have Priyank Raj. Hello, sir. Good evening.
यस, गुड इवनिंग। सर, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा और बताएंगे? क्या कैसे करते हैं ये लोग, क्या उसमें प्रोसेस रहता है, थोड़ा जनरलाइज में ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। इन द आउटस्ट्रेच मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स आंखों की स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ये जनरल ट्रीटमेंट यहाँ पे जो चलता है वो नेत्र तर्पण है, और अश्वतना अंजना, पुटपाका एंड बस्ती। दीज आर द कॉमन टर्म्स यू माइट हैव हेड अबाउट। सिरोधारा करके एक और थेरेपी होता है। तो इन थेरेपीज के जरिए हम ये करने की कोशिश करते हैं कि आपका ब्रेन एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आ जाए, और आपके आंखों के अंदर जो भी दोष बोलते हैं, दोष का मतलब है वाता पित्त कफा, आपने सुने होंगे। तो ऐसी दोष की वजह से आपका रेटिना खराब हो रहा है। जिस प्रकार बायोमेडिसिन बायोमेडिसिन का मतलब है मॉडर्न मेडिसिन के लोग रेटिना को जेनेटिक कॉजेस की वजह से डिजनरेट होता है करके बोलते हैं, इन द सिमिलर वे आयुर्वेदा पीपल ओपाइंस आवर रेटिना अंडरगो डिजनरेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोषास इनसाइड द आईज. So they will try to remove those doshas, the excess of kapha dosha from the eyes. And with this kind of treatments, in the initial days, you can, get your eye health bettered. आई हेल्थ आपका सुधरेगा और आप अच्छे से देख भी पाएंगे। लेकिन इसको रेगुलरली कराता रहना होगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि ये सबके ऊपर काम करेगा। I have been benefited a lot from Ayurveda medicines. I have to put it very clearly because I studied 10 years from Ayurveda institutions. मेरा 6 साल की पढ़ाई आयुर्वेद की यूजी में गया था, और 3 साल की पढ़ाई आयुर्वेद की पीजी में गया था पोस्ट ग्रेजुएशन करने के वक्त। और मैं अभी भी एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में ही काम करता हूँ। हालांकि आजकल मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाता हूँ कुछ भी, लेकिन पिछले 15 साल से मेरा आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट चला है, तो उससे मुझे फायदा मिला है। So this is all about Ayurveda treatments. And if you want genuine Ayurveda treatment, very popular centers for Ayurveda therapies are in Kerala. इसको मानना पड़ेगा क्योंकि केरला इज अ लैंड ऑफ आयुर्वेदा। वहां पे अथेंटिक और शास्त्रोक्ता बोलते हैं ना, जो एज इट इज एंशियंट ट्रेडिशनली फॉलो किया जा रहा है, ऐसा ही ट्रीटमेंट्स को वो लोग आज भी देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इज श्रीधरियम. श्रीधरियम इज a group of eye hospitals which is available both in Trivandrum and Cochin and Bangalore. तो इन तीनों जगहों में से कहीं पर आई हैव हर्ड दैट देयर इज अ ब्रांच ऑफ श्रीधरियम इन इवन इन न्यू दिल्ली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आप श्रीधरियम के पास जाकर देखिए। सी, वन थिंग विच इज क्लियर इज यू मे हैव टू स्पेंड टू मच टू गेट वेरी लेस बेनिफिट। ये तो वेरी क्लियर है, आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा सिर्फ छोटी सी बेनिफिट पाने के लिए। जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जिसके बारे में मैं कल भी बोल रहा था, वो बहुत कम है ऐसी थेरेपीज में। आपको एक सिटिंग थेरेपी के लिए जो 15 से 20 दिन लगेगा, उसके लिए 60,000 से 70,000 तक जा सकता है इन आयुर्वेदा थेरेपीज। लेकिन बेनिफिट तो है, बट इट इज जनरल आई बेनिफिट। इन स्पेसिफिक रेटिना के ऊपर काम करने के लिए, दावा करने के लिए जो साइंटिफिक एविडेंस है, वो हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है। लेकिन इन जनरल आई हेल्थ को इंप्रूव करता है। अक्सर क्या होता है ना, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और एनी अदर रेटिनल डिसीजेस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिसीज। यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे चीजों से बना हुआ रहता है। तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स में कुछ नॉन सिग्निफिकेंट चीजें जो भी हो सकते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो मेन चीज है, रॉड कोन सेल्स की डेथ होना या ऑप्टिक नर्व्स की डिजनरेशन होना, रेटिना डिजनरेशन होना, उसको रोकने में ज्यादा हद तक ये सफल नहीं हो पाया है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टेक ऑन आयुर्वेदा मेडिसिन। Thank you, थैंक sir. यू सर। यस, Now, Darshana can ask the question. Hello, sir. यस, गुड इवनिंग। I am a RP patient, ओके, and I would like to know about two things. One is the psychosomatic effect. ओके, Actually, there are certain या, yogas which we यस, call as a vision yoga. So there are certain sets of simple exercises. यस, So डेफिनेटली। वो जो है वो कितना इफेक्टिव है, मैंने किए हैं वो सेट्स में करती भी हूँ। जैसे लाइट थेरेपी होता है, ब्लिंकिंग पे बेस्ड है बेसिकली, यस, कि यस, ब्लिंक यस, करना एक पर्टिकुलर सेट्स में, तो वो कितना इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि जैसे आपने बताया, कल से मैं सुन रही पोस्टेरियर एंड एंटेरियर, तो मुझे लगता है वो एंटेरियर के लिए ज्यादा यूजफुल है, नॉट यस। फॉर द पोस्टेरियर। बट फिर भी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर साइकोसोमेटिक इफेक्ट, आप थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दीजिए।
Yes. Okay, it's a really a good question actually. See, psychosomatic diseases are a group of disease when कोई भी बीमारी आपके जो बॉडी में है उसको सोमैटिक डिसीज बोलते हैं. सोमैटा मींस बॉडी. बॉडी के अंदर जो डिसीज है उसको सोमैटा बोलते हैं. माइंड एक अलग कंपोनेंट है. जब एक बीमारी बॉडी और माइंड दोनों को इन्वॉल्व करता है देन इट इज कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक डिसीजेस. जो आप देख पाते हैं वो लेस इज फ्रॉम योर आईज एंड मोर इज फ्रॉम योर ब्रेन. जो आप आज भी हम जो साइटेड लोग हैं वो जब देख पाते हैं वहां पे आंखों की काम कम है, ब्रेन की काम ज्यादा है. तो अभी हमारा सिर्फ रेटिना डैमेज है लेकिन ब्रेन तो ठीक काम कर रहे हैं ना. सो दिस इज एन अप्रोच कॉल्ड साइकोसोमैटिक अप्रोच. साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है ब्रेन को स्टिमुलेट करना, ताकि ब्रेन जब 2x 3x में काम करने लगेगा तो आंखों में जो कमियां हैं उसको वो रूल आउट कर पाएगा. And whenever it comes to yoga, motivation, stress relieving, all these things are called नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन. इसमें कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ता है. ये सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है. ये जो साइकोसोमैटिक इम्पैक्ट जो आरपी की वजह से जो दिमाग पर असर पड़ा है हमारा, उसको ट्रीट करता है. एंड इट इज वेरी 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 क्रूशियल इन माय एक्सपीरियंस. जहां तक आज भी मैं देखता हूं, आरपी को नाम सुनकर ही लोगों की उम्मीद उड़ जाता है, लोगों की हौसला टूट जाता है. We will be destroyed, we will be broken just by listening to the name RP. That should not be the case, because our brain is having all the abilities that every sighted individual have. Now this yoga, meditation, pranayama, and even vipassana and all the remedies and meditation very specially focuses on strengthening your brain. जब ब्रेन ताकतवर बन जाएगा तो आपकी आंखों की जो कमियां हैं उसको ओवरकम कर पाएगा. व्हेन ब्रेन कीप्स योरसेल्फ हैप्पी देन एवरी सेल विल रिसीव दैट डोपामाइन. डोपामाइन इज ए हार्मोन विच इज सेक्रेटेड ओनली बाय ब्रेन. वो भी सिर्फ आप बहुत खुश रहेंगे तभी वो डोपामाइन सेक्रेट होता है. और डोपामाइन में इतना ताकत है कि वो आपकी रेटिना की डिजनरेशन को रोक सकता है. दिस इज हाउ दिस थियरी ऑफ साइकोसोमैटिक थेरेपीज इज प्रूव्ड. और ये सच है. हाँ. मतलब आपका कहना है कि जो डोपामाइन जो हम कहते हैं जो हार्मोन रिलीज होता हाँ. है दैट कैन इफेक्ट ऑन योर आवर रेटिनल हेल्थ. डेफिनेटली. एंड इट कैन नॉट ओनली इम्पैक्ट ऑन रेटिना. चाहे कुछ भी बीमारी हो, डोपामाइन के अंदर वो स्पेशल एबिलिटी है कि वो सेल्स की ऑक्सीडेशन को कम करता है. जो सेल एक्साइटेड स्टेज में रहता है, सेल भी अपना क्या बोलते हैं, हैरान हो जाता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है. देन जैसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसा ही ब्रेन की डोपामाइन जाके रेटिना सेल्स को मोटिवेट करके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू एज एन एनोलॉजी, इट्स नॉट द सेम थिंग व्हाट हैपेंस. वो रेटिना सेल्स को कूल कर देता है ताकि वो आराम रहे. देन द डिजनरेशन ऑफ रेटिना स्लो डाउन एंड यू कैन सी बेटर. ये बहुत लोगों में मैं देखा हूं जो लोग खुश रहते हैं आरपी के बावजूद या आरपी होने के बावजूद, वो लोगों की प्रोग्रेशन धीमी रहता है और वो ऑल ऑफ ए सडन डिटोरिएशन नहीं होता है. सो दिस इज अ प्रूवन थेरेपी विच कैन बी अडॉप्ट. प्राणायाम रोज करना है. माइंडफुलनेस होना जरूरी है. इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी विच मैटर्स, नॉट द फिजिकल एबिलिटीज. ऐसे ये कहना है स्टीफन हॉकिंग का. स्टीफन हॉकिंग भी एक न्यूरली पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाला बीमारी से जूझ रहा था. जैसे राइट. आंखों की नर्व्स रेटिना डैमेज हुआ था, उस वैसे ही उनके सारे शरीर का नर्व्स डैमेज हो चुके थे. वो हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पाता था, फिर भी ही कुड बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट. यस, दिस मोटिवेशन मैटर्स अ लॉट. आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू कीप योरसेल्फ हैप्पी इन ऑल द वेज पॉसिबल. लोगों की बातों को मत सुनिए, डॉक्टर्स की बातों को भी ज्यादा मत सुनिए. जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलने दीजिए और खुद को खुश रखने की हरदम कोशिश कीजिए. दैट इज कैन बी ए बेस्ट ट्रीटमेंट. एक्चुअली उसके बारे में मैंने बोला नहीं था. एनीवे आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट इन द एंड. दिस इज द टाइम. ऑलवेज कीप योर सेल्फ हैप्पी. इट कैन रियली हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर आई हेल्थ. तो सर आप भी कोई प्राणायाम रूटीन या योगा रूटीन मैं फॉलो करते हैं? मैं करता हूँ. मैं कपालभाति करता हूँ. कपालभाति आपने यूट्यूब से भी देखकर सुन सकते हो. कपालभाति स्ट्रेंथन्स आई मसल्स एंड वो जो आंखें पीछे चले जाते हैं, कल कोई तो पूछा था, तो उसको कपालभाति रोक सकता है. और नाड़ी शोधन, जहां पर भी बैठे हो आप, आपके सांसों के ऊपर पकड़ को अवेयर रखो. सी वी विल बी ब्रीदिंग इनवॉलंटरियली. लंग्स आप चाहो या ना चाहो
हरदम ब्रीदिंग करते ही रहता है, जब आप सोते हो तब भी ब्रीदिंग चलता है, लेकिन जब आप उसको कॉन्शियसली करते हो देन योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, सो दैट इज व्हेन मोस्ट ऑफ द सेल्स गेट रीजनरेटेड। सो दिस इज ए पोस्टुलेशन। हालांकि इसके ऊपर भी क्लिनिकल पेपर्स बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन देर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड एस व्यासा एंड देर इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मुरारजी देसाई MDNIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा MDNIY, विच इज देर इन दिल्ली, जहां पर दिल्ली के जो भी लोग हो वहां पर जाके कुछ बेनिफिट्स पा सकते हो। योगा वर्क्स ए बिट। ओके। ओके, थैंक यू यस, सर। और आपका नंबर कैसे मिलेगा अगर? you can ask our Divyability Foundation people. The ओके। organizers can provide you. थैंक यू सर। Thank you so much, man. Thank you, sir. And now Ashutosh can ask his question. सर जो RP-E65 का ट्रीटमेंट है, क्या वो पूरी तरह से जो हमारा विजन अगर पूरी तरह से खत्म हो गया है तो वो उसको हम्म रिवर्ट बैक कर सकता है? और उसका कोई वो तो नहीं है, जैसे कुछ इन्फेक्ट कुछ दिक्कत तो नहीं होती उस ट्रीटमेंट से? हम्म। देखिए, वो साइंटिफिक जो स्टडी है वो 2017 से चालू है, RPE65। हालांकि वो स्टडी बहुत पहले से चालू था, लेकिन उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिला था 2017 में। अभी उसको 8 साल हुआ है बस रिजल्ट नतीजा निकल के। और ये जितने लोगों पर ट्राई किया जा रहा है उन सारे पेशेंट्स को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में RPE65 जो जीन डिफेक्टिव जीन आंखों में था, उसको लेक्सटर्ना थेरेपी के बाद फिर से ये लोग जेनेटिक टेस्ट करा के देखा, तो वो RPE65 आंखों से हट चुका था। तो जब इनको पता था कि RPE65 से ही ये रेटिना डिजेनरेट हो रहा है और वो RPE65 को हमने सक्सेसफुली आंखों से निकाल दिया, तब वक्त लगता है उनका रेटिना वापस रीजनरेट होगा। दिस इज ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस और पोस्टुलेशन। उसके लिए वक्त जरूर चाहिए होगा, और धीरे धीरे अपना रेटिना जब वापस आएगा देन डेफिनेटली यू कैन गेन योर साइट। आपका विजन, आपको विजन वापस आएगा। ये पोस्टुलेशन है। और इसके ऊपर जैसे आपने पूछा, कोई साइड इफेक्ट्स बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन नहीं बोलते, साइड इफेक्ट्स हो सकता है, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म स्टडी करना जरूरी है। अब 20-15 साल देखना पड़ेगा। जो कुछ पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स में भी लेक्सटर्ना को ट्राई किया हुआ है, और उन बच्चे जब 40 साल या 45 ईयर्स पे आ जाएंगे तब तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का नतीजा वो पूरा ऑब्जर्वेशन होने के बाद ही पता चलेगा। you know as of now there are no side effects. As of now it is working well. As of now it can give back your vision and it can eliminate the defective gene from your body. जेनेटिक डिसीज में, सारे डिसीज में यही है चीज की, जो डिफेक्टिव जीन है इसको म्यूटेटेड जीन बोलते हैं, उसको बाहर निकालना होता है। जो नॉर्मल जीन जो साइटेड लोगों के आंखों में है, ऐसी जीन को हम लेबोरेटरी में क्रिएट करके एक वायरस के जरिए आंखों में इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज जेनेटिक थेरेपी। इन लेक्सटर्ना वी विल बी इंजेक्टिंग RPE65 को, जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन था, जो हेल्दी जीन है, उसको इंट्रोड्यूस करके हम आंखों की हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। सो दिस इज अबाउट RPE65 एंड लेक्सटर्ना इंजेक्शन। सर अगर आपको आइडिया इसकी कॉस्ट कितनी होगी अराउंड? नहीं यार, आई कैन नॉट टेल इट एज पर इंडियन कॉस्ट। मैंने सुना है कि करोड़ों भी लग सकता है, 10 लाख 4 लाख, ऐसा अफवाहें हैं। आई हैव नॉट आई डोंट I haven't yet got any opportunity to directly interact with any of the ophthalmologists who can prescribe this. भारत के जो भी ophthalmologists है उनमें से किसी को इसको प्रिस्क्राइब करने की लाइसेंस नहीं है। इट इज ओनली अप्रूव्ड इन USA एज वेल एज UK एज ऑफ नाउ। तो यूके में जो भी लोग रहेंगे उनसे पूछताछ करवा के वो पाउंड्स में बताएंगे या डॉलर्स में बताएंगे, उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करवा के जब देखते हैं तो वो लाखों रुपए से भी ज्यादा होगा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Now Darshak Jain. Hello, sir. How to हेलो remove cataract, sir? सर, How? कैटरैक्ट, सी इफ यू आर सफरिंग विथ रेटिनल डिसीज, ये कल का टॉपिक है। मैंने कल बताया था कि कैटरैक्ट एंटीरियर लेंस में भी हो सकता है, पोस्टीरियर लेंस में भी हो सकता है। इफ इट इज इन एंटीरियर लेंस इट कैन बी इजीली रिमूव्ड थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी और थ्रू लेजर और थ्रू लैसिक थेरेपी। बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इफ इट इज in the posterior aspect and you are also suffering with any associated retinal disease, then there would be no benefit of removing the cataract. कैटरैक्ट रिमूव करने के बाद भी आपको RP है तो RP वैसे के तैसे रहेगा ही रहेगा, आपके विजन में ज्यादा इंप्रूव
नहीं होगा. सो दिस इज अबाउट पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, पीएससी. आप ये सुने होंगे, आपके रिपोर्ट्स में ये भी शायद लिखा होगा. जो भी पेशेंट 10-15 साल से आरपी से जूझ रहा होता है, उसको ये कॉम्प्लिकेशन की नाम पे पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट शुरू हो जाता है. सो फॉर दैट इट्स अनवर्थी टू अंडरगो ट्रीटमेंट. Darshak, please unmute yourself. गुड इवनिंग सर. यस, गुड इवनिंग. अभी मुझे ना कैटरेक्ट की दिक्कत तो हुई है, लेकिन वो पोस्टीरियर इंटीरियर है, वो कैसे फाइंड आउट हो वो पाएगा? आपके स्कैनिंग करने के बाद रिपोर्ट में लिखा रहता है. जब भी डॉक्टर फंडोस्कोपी करते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट निकलता है. वो डॉक्टर खुद हाथ से लिखते हैं या रिपोर्ट करके देते हैं. एंड आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट वन मोर वेरी ब्यूटीफुल एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल नाउअडेज. इट इज कॉल्ड ओसीटी, ऑप्टिक कोहेरेंट टोमोग्राफी. ये एक जैसे सीटी स्कैन वगैरह होता है, ऐसा आंखों की भी एक स्कैन है. वहां स्कैन से आपको पता चल जाता है कि आपका रेटिना की थिकनेस कितना है, आपका रेटिना कितना गया है, और आपको क्या मतलब कैटरैक्ट आगे है, एंटीरियर में है या पोस्टीरियर साइड में है. ये सारी चीज ओसीटी करवाने से आपको पता चल जाता है. ये भी कॉस्टली ओसीटी. डायग्नोस्टिक टूल है. 3,000 या 4,000 लगता है इसको स्कैनिंग करवाने के लिए. लेकिन आजकल ओके. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल बी डूइंग दिस ओसीटी स्कैन. ओके. ओके. या थैंक यू. या वेलकम. Now Shweta Goyal can ask. यस, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. हाँ सर, मैं जानना चाहती हूँ कि 20 इयर्स पहले जब मुझे हम्म 50% विजन था और हम्म मुझे थोड़ा टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने दिल्ली में एम्स में दिखाया था. तो हम्म डॉक्टर ने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोला था. अभी उस समय तो मुझे इतना ध्यान नहीं था. उन्होंने एक रील मांगी और उस रील से उन्होंने बस ये कहा था कि तुम्हारे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की डिसीज है और तुम्हारे रेटिना में स्पॉट आ गया है. ऑप्टिक नर्व की कोई बात नहीं बोली थी उन्होंने. और फिर तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट कराया, तो 1 साल तक उनकी भी चले, तो उन्होंने बोला कि नाइट ब्लाइंडनेस है. लेकिन वही सर है. देखिए, हमारा विजन रुका नहीं, धीरे धीरे आज बिल्कुल विजन चला गया है सर. और इनफैक्ट बाकी में कौन सी बीमारी है सर ये हमारी? ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ही हो सकता है. हालांकि इसका सबूत के लिए हमें ईआरजी का रिपोर्ट होना जरूरी है. इफ यू हैव डन इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी एक स्टडी है, उसमें आपको साफ लिखा हुआ रहता है कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है या मैक्युलर डिजनरेशन है, रेटिनल डिटैचमेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो भी होगा वो वहाँ पे लिखा होगा. और जिस प्रकार मैं आपसे सुन पा रहा हूँ, इट स्टार्टेड विद नाइट ब्लाइंडनेस एंड ग्रेजुअली आफ्टर 20 years you have lost your sight. So definitely it is retinitis pigmentosa. It can be retinitis pigmentosa. यस सर. सर इसका जेनेटिक टेस्ट कराना है तो ये हम कहाँ पर करा सकते हैं और इसका कितना कॉस्ट आ सकता है सर ये? I'm not sure if it is done in All India Institute of Medical Science. एम्स में करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हालांकि ऑल पॉपुलर आई सेंटर्स, अग्रवाल हो गया या फिर शंकर आई हॉस्पिटल हो गया, सारे बड़े बड़े आई हॉस्पिटल्स में कराते हैं. इसको 6,000 से 8,000 तक लग सकता है. ये तभी फायदा होगा जब आपका रेटिना मतलब जेनेटिक टेस्ट के बाद आपके जो रेटिना को इम्पैक्ट करने वाला जीन है वो RPE65 हो. तभी ये लोग आपको एक लिस्ट में बना के रखेंगे, ताकि जब भी इंडिया में लक्षण आएगा तब आपके ऊपर वो चेक किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा. सो दैट्स द ओनली बेनिफिट एज ऑफ नाउ आई कैन एबल टू रिकलेक्ट. क्योंकि जीन का पता चलने के बावजूद उसके बाद भी उसके कोई थेरेपी नहीं है. लेकिन आप अनमैरिड है, मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो, देन जीन थेरेपी कुछ हद तक मदद कर सकता है. वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो डिसीज है वो ऑटोसोमल डोमिनेटिंग है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है. तो ये थोड़ा जेनेटिक काउंसलिंग के लिए मदद करेगा. अदर देन दिस जीन टेस्टिंग इज नॉट ऑफ मच यूज. यस सर. ऑल ट्रीटमेंट सब तरह से करवाने के बावजूद भी सब डॉक्टर्स ने ये कहा कि विजन यहाँ पर रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रुका विजन. वो डिसीज के ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड नो. डॉक्टर जो भी बोलते हैं आज, इज इज जस्ट हाइपोथेसिस. हो सकता है कि आपका विजन रुकेगा, ऐसा बोलना चाहिए. ऐसा कोई भी अथॉरिटेटिवली नहीं बोल सकता है कि इस ट्रीटमेंट से आपका विजन रुक जाएगा, इस ट्रीटमेंट से आपका प्रोग्रेशन रुक जाएगा, इस ट्रीटमेंट से आपका विजन वापस आएगा. ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. ऐसी बातें कोई बोल रहा है तो उनके जाल में मत फंसिए. As of now, with all medical, knowledge available in the authentic websites, रोकने के लिए कोई अथेंटिक थेरेपिस्ट नहीं है.
there can be a chance that your progression of disease can be stopped. There can be a chance. There cannot be very sure strategies to stop it. Okay, sir. Thank you. Yeah, welcome. Okay. Now, Pooja can unmute. Hello, sir. Good evening. Good evening. सर एक्चुअली आई ऑल्सो हैव आरपी और मेरी मम्मा को, मेरी बहन को और मुझे भी है, और मेरा भाई जो है वो साइटेड है सर। तो लाइक कौन साइटेड है? मेरा भाई। ओके ब्रदर, ओके ठीक है। ऑल्सो साइटेड। तो मेरे भाई के मैरिज के बाद अदर इन पॉसिबिलिटीज कि उसके बच्चों को वगैरह होगा सर, ऐसा कुछ कैरियर बोलते हैं ना, इज ही अ कैरियर Yes. वो? ही कैन बी ए कैरियर। मेरे हिसाब से जब आप बोल रहे हो ये पैटर्न जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है। उसके लिए आपको ठीक से पता करने के लिए एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। इट कैन बी डन बाय ए जेनेटिक काउंसलर। जब वो पूरा पूरा फैमिली चार्ट निकालते हैं कि आपके मामा को था, पापा को था, पापा के पापा मतलब दादाजी के यहाँ से किसको था, नाना जी के यहाँ से किसको था, ये पूरा फाइंड आउट करने के बाद एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपके भाई नहीं मतलब कैरियर है कि नहीं है। अगर आपका भाई हेल्दी है तो जरूर उसके बच्चों को नहीं होगा कोई भी बीमारी। लेकिन आपका भाई कैरियर है तो जरूर आपके बच्चों में हो सकते मतलब भाई के बच्चों में हो सकते हैं। सो सर इसके लिए मेरी आपको हाँ पेडिग्री चार्ट करवाना होगा। ओके सर, मेरी मम्मा है, पापा के फैमिली में किसी को भी नहीं था, मेरी मम्मा को ही हुआ है ये फर्स्ट। और फ्रॉम हियर वी बोथ सिस्टर्स गॉट दिस इशू। यस। तो फिर भी मेरे भाई को होगा यार सर नहीं कैरियर? आपका आपके पापा हेल्दी है और आपके पापा के सारे खानदान में किसी को नहीं थे? नहीं है सर, किसी को भी then नहीं है। then it is X-linked, definitely your brother will be carrier। 100% आपका भाई कैरियर है क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो मम्मी की तरफ से ही मिलता है। तो आपके मम्मी भी ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, तो मान सकते हैं कि आपके मम्मी के पास जो दो एक्स क्रोमोसोम थे दोनों के दो इन्फेक्टेड थे। तो आप में से जितने बच्चों को भी एक्स मिला है उन सभी को बीमारी हुआ है। और आपके जो दूसरा एक्स आपके पापा से आया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी आप दोनों ही कैरियर भी हो सकते थे। आप और आपके बहन इन्फेक्टेड भी हो सकते थे। लेकिन आपके भाई को सिर्फ एक्स एक आपके मम्मी से मिला और वाई जो आपके पापा से मिला, इसलिए वो कैरियर है। डेफिनेटली भी ही विल बी ए कैरियर। एंड तो उनको व्हाट अगर गर्ल चाइल्ड होती है, आपके भाई को गर्ल चाइल्ड होता है, तो डेफिनेटली शी विल बी हैविंग 100% चांस दैट शी विल बी सफरिंग विथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और अगर आपके भाई की वाइफ हेल्दी है और आपके भाई को बॉय चाइल्ड होता है, देन ही कैन बी हेल्दी। सो आपको समझ में नहीं आएगा जैसे मैं बोलूंगा, उसको लिखा के या फिर जेनेटिक काउंसलर लिख कर ही दिखाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। And so what about my sister? So as she is also RP patient, so her हाँ, children वो will be. हेल्दी मेल से शादी करती हैं तो 50% नहीं 75% चांसेस आर देयर दैट शी विल गेट ए हेल्दी प्रोजेनी। और उनको भी बॉय होगा तो वो जरूर कैरियर होगा। गर्ल होती है तो 50% चांस है कि वो इन्फेक्टिव बन सकती है। दिस कांट बी एक्सप्लेन जस्ट विद इन वन गो। ओके, आप will be जेनेटिक carrying. काउंसलर के साथ बैठकर फैमिली चार्ट निकालेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा ठीक से। Sir, one more thing, sir. This career concept will be carrying on, sir. ये खत्म नहीं हाँ, वो होगा। होता ही जाएगा जरूर। सी कैरियर का मतलब है जो एक इंसान जो देखने के लिए हेल्दी है, जब भी एक जीन इनहेरिट होता है तो वहां पे आपको दो चीज देखने को मिलता है। वन इज फिनोटाइप, द अदर इज जीनोटाइप। जीन का एक कोड रहता है और दूसरा फिनोटाइप, उसका एक कैरेक्टर रहता है। आपको आरपीई एक डिफेक्टिव जीन आपके आंखों के अंदर आया तो उसमें एक कोड की गलती था। डीएनए जो एक कोड से बनता है न्यूक्लियोटाइड से, उस कोड में गलत था तो इसलिए आपके रेटिना गलत बन गए। लेकिन वो रेटिना को डिस्ट्रक्ट करे या ना करे वो भी फिनोटाइप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो कैरियर का मतलब ऐसा है जिसके पास कोड गलत है फिर भी उसका आंख ठीक काम कर रहा है। लेकिन जब आप अगले पीढ़ी को कोड दोगे तो आप खराब हुआ कोड ही देंगे, जेनेटिक कोड। गेटिंग द पॉइंट? सो इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कैरियर का मतलब है
कि उसके पास एक कोड, जो जीन का कोड है वो गलत मिला हुआ है, जेनेटिक टेस्ट कराने के बाद वो इन्फेक्टेड ही दिखेगा, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, वो आराम है, उसको कोई डिसीज नहीं हुआ है। लेकिन उनके बच्चे जब होंगे तो वो शायद खराब हुआ कोड रिफ्लेक्ट हो सकता है और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। सर और एक क्वेश्चन सर। सर आई हैव हर्ड कि लाइक आरपी का प्रोसेसर लाइक 3 पीढ़ी तक कैरी होता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या सर? आई डोंट नो अबाउट इट। नो नो, नथिंग सच पैटर्न, इट्स अ रूमर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके इट कैन बी स्टॉप्ड, इट कैन कंटिन्यू, इसीलिए वी डोंट एडवाइज टू हैव मैरिज विद इन द फैमिलीज। वहां पर चांसेस बढ़ जाता है, विद इन खून की रिश्तेदारी में शादी करने से चांसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग दैट डिसीज आर ट्रांसफरिंग द डिफेक्टिव जीन विल इंक्रीज। दैट्स द रीजन व्हाई हेल्दी लोगों से और दूर दूर से रिश्ता लाना चाहिए। ओके सर, आई वुड लाइक टू गिव योर नंबर सर। श्योर मैम, डेफिनेटली इट विल बी पोस्टेड देयर। थैंक यू। ओके ना, एसके कुशवाहा सर आप पूछ सकते हो। एंड श्वेता जी, बहुत सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, शायद इफ हाँ, एनीबॉडी। that I am looking on. I'll या, let you know. थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा एक जो ट्रीटमेंट पे बोल रहे हैं, एक अदर ग्रुप में एक बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। कोई डॉक्टर है महापात्रा कटक में, वो नैनोस्कोप थेरेपी कुछ हाँ, ट्रायल। नैनोथेरेपी। ये क्या हो सकता है सर? इसमें क्या सर, अभी? नैनोथेरेपी का मतलब है, नैनो एक पार्टिकुलेट साइज है, जैसे कि सेल का साइज हुआ छोटा सा, माइक्रो। माइक्रो से भी छोटा चीज है, जैसे सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इन चीजों की साइजेस को नैनो पार्टिकल साइज माना जाता है। तो ऐसी कोई सम ड्रग्स विच आर ऑफ दिस नैनो साइज are believed to reach inside the cell and correct the cell structure और सेल मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जो फंक्शंस चल रहा है, जो सेल के अंदर की खराबी है, उसको ठीक करने के लिए नैनो पार्टिकल सेल के अंदर तक पहुंच के उसको ठीक करने की, ये भी पोस्टुलेशन है, ये भी हाइपोथेसिस है, लेकिन इसको क्लिनिकली एक्नॉलेज करने के लिए हमारे पास कोई रिसर्च पेपर्स नहीं है। देर ये थियोरिटिकली सही है कि आजकल की क्या होता है ना, बहुत सारे डॉक्टर लोग जो बोलते हैं वो थियोरिटिकली करेक्ट है, नैनोथेरेपी हो सकता है, लेकिन है नहीं। it has to be proved, it has to be undergone vigorous testing, it has to be taken into multiple phases of clinical trial, then only it has to be approved, then it can be brought into market। अभी नैनोथेरेपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पे काम कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रूवन थेरेपीज मेडिसिन में उपलब्ध नहीं है। दिस इज माय ओपिनियन ऑन दिस। ओके सर, एक और था क्वेश्चन डिफरेंट डायरेक्शन का। मैं सिरधरियम में जाता रहा हूँ पहले से भी, और कोई ऐसा तो लाभ नहीं हुआ अभी तक, तो आईसाइट 48 हो। तो एक डॉक्टर जो अभी उत्तराखंड में मुझे आयुर्वेदिक के एक और डॉक्टर मिले थे, वो बोले कि 6 मंथ्स के लिए आप मेरी इलाज कराइए। वो त्रिदोषा को सॉर्ट आउट करने के लिए दवा दे रहे हैं, मतलब आंख से रिलेटेड कुछ नहीं है, त्रिदोषा। तो वही मैं काफी बोला ना, आंखों की स्वास्थ्य, इट फोकसेस ऑन जनरल हेल्थ ऑफ आई। और मैंने शायद आपको इस सेंटेंस को बोला था कि आरपी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उसमें छोटे मोटे आईज की ऐसा भी खराबियां या गलतियां हो सकती हैं जो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए, और उसकी वजह से आपको थोड़ा हद तक बेहतर महसूस भी हो जाए। लेकिन जो कोर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की कॉज है, जो रॉड सेल्स डिस्ट्रोफी हो रहा है, उसके लिए डायरेक्ट रेमेडी कुछ नहीं है। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक है और सब्जेक्टिव भी है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। देख लो, आपके पास आरपी, जिस दिन से आपको आरपी डिटेक्ट हुआ, उस दिन से आप जितने भी दुख में होंगे, उतना भी आपका आंखों की बीमारी बढ़ता जाएगा। तो जब आप ऐसे आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास जाओगे, तो वो पेरिफेरल डैमेज जो भी हुआ है, सेकेंडरी डैमेजेस बोलते हैं उसको, वो सेकेंडरी डैमेजेस ठीक हो जाएंगे। और जो कोर आरपी को छोड़ के इसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो भी छोटे मोटे त्रिदोष से जो दुष्टि हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं बोला ना, पैसा ज्यादा लग सकता है और फायदा कम हो सकता है, बट दे कैन नेवर बी कॉल्ड एज यूजलेस। यूज होंगे, कम है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। या Ashwini, you can ask. Am I audible? Yeah, go ahead. Yes, sir. Sir, actually, my optic nerves has damage.
तो ओके मेरा ब्रेन प्रेशर की वजह से मेरा जो ऑप्टिक नर्व्स है वो यस ड्राई हो गया है। यस्टरडे आई टॉक या विद यू। या इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या आयुर्वेदा में वगैरह? नो मैम, सैडली नो। लेकिन इफ यू आर वेरी हैप्पी, इफ यू आर रेडी टू टेक इट पॉजिटिवली, देन मैंने बोला ना, एसोसिएटेड डिसीज जो भी होगा, एसोसिएटेड का मतलब है जो मेन बीमारी के साथ छोटे छोटे चीजें भी जो इर्द गिर्द वाले होंगे, वो सब ठीक हो सकते हैं और कुछ हद तक आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। इफ योर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज गुड, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप आयुर्वेदा ट्राई करो। आई मीन यू यू कैन गेट सम 4 to 5% ऑफ बेनिफिट्स, दैट्स इट। कुछ या तो सम 5% की। योगा, यस सो सम योगाज एंड ऑल क्या बेनिफिट है? डेफिनेटली रोज योगा करो, मैं बोलूंगा रोज योगा करो, क्योंकि योगा से होलिस्टिक हेल्थ बढ़ता है। देखिए, आप आजकल जो बीमारियां हम लोग जिससे जूझ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ऐसा है कि सिर्फ हमको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में पता है, इसके साथ बहुत सारे डिसीजेस हमारे बॉडी के अंदर है। दैट कैन बी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस, लिवर डिसीजेस, स्प्लीन डिसीजेस, रीनल या किडनी की डिसीजेस। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हम बहुत वरीड रहते हैं। वरीड का मतलब स्ट्रेस्ड रहते हैं। आजकल की जो रफ्तार की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, वो भी हमारे बॉडी के ऊपर असर पड़ रहा डाल रहा है। द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग, सो ऑल ऑफ दिस विल इनडायरेक्टली हैविंग सम इम्पैक्ट ऑन अवर रेटिनल हेल्थ और आई हेल्थ। तो योगा करने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे मतलब देर कैन बी ए बेटर अप्रोच टू कीप आवर लाइफ स्टाइल इन ए हेल्दी मैनर, in which it will give some indirect benefits to your eyes। वो यस इनडायरेक्ट बेनिफिट भी बहुत मायने रखते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग। देखो, हमारे आंख ठीक नहीं है, मान लीजिए हमारा लाइफस्टाइल खराबी की वजह से हम ओवरवेट बन गए, तब ये और प्रेशर डालेगा हमारे आंखों के ऊपर। ओवरवेट का मतलब है स्थौल्य। तो योग करने से हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम नेविगेशन, मोबिलिटी, हर जगह पे योगा काम करेगा। मान के चलो कभी कभी आपको एकदम 2 सीढ़ी पे पैर डाल दिया, तब आप योगा ठीक से नहीं करते तो जरूर फ्रैक्चर हो जाएगा आपके पाँव, या आप गिर जाएंगे। आप योगा करते हो तो आपका बॉडी डेफिनेटली फ्लेक्सिबल रहेगा, तो आप गिरते वक्त भी आसानी से लैंड हो जाएंगे। तो ब्लाइंड की वजह से जो सेकेंडरी हमको नुकसान हो सकता है, उन सारी चीजों को योगा बचाता है। And I'm very proud to say I practice yoga every day। यस सर। Yeah। तो सर दिस टाइप्स ऑफ पेशेंट तो उनका जेनेटिकली प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता ना, इफ नेक्स्ट जेनेटिक जनरेशन नहीं है, जेनेटिक नहीं है। आपको हाँ अक्यूट डिसीज बोलते हैं इसको। जेनेटिक वाले सारे क्रोनिक होते हैं, इनको धीरे धीरे घटता है। जिसको भी एक्सीडेंट के जरिए या ब्रेन की प्रेशर के जरिए जो भी होता है, वो अक्यूट डिसीज है। यहाँ पे रेटिना की प्रॉब्लम नहीं है, और आपको आगे की जनरेशन में भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। योर किड्स विल नॉट गेट दिस डिसीज, डोंट वरी। यस सर, थैंक यू। या Govind ji, you can ask. Okay. Ramit, Hello, good evening, sir. How are you? या गुड इवनिंग रमित, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? I'm also good. या एक ना मुझे ये बात हुई, जैसे जो मैंने जितना सुना है कि जो आरपी है उसके अंदर ना कफ और पित्त दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा तीनों है, इन्वॉल्व जैसे होता आपने है। खाली कफ बोला, हम्म जबकि मैंने सुना था कि कफ और पित्त दोनों का ही दोष रहता है इसके अंदर। हम्म आई एम लूजिंग यू, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। मैं कह रहा हूँ आरपी के अंदर कफ और नहीं, पित्त तीनों दोष का दोनों, इन्वॉल्वमेंट होता है। वात का भी तीनों है, तीन, तीनों का। या तीनों का होता है। ये तिमिरा बोलते हैं इसको, आयुर्वेदिक लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड एज हाँ, तिमिरा। इसको हाँ संधिपादिक तिमिर बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में हाँ हाँ इसका नाम हाँ है हाँ हाँ, संधिपादिक तिमिर। तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, लेकिन कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। इट इज कॉल्ड कफ विदग्ध दृष्टिगत रोगा। कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, लेकिन वाता पित्ता को भी वो खराब कर दिया हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कफ का ट्रीटमेंट लेने से आरपी ठीक हो जाएगा, ये भी गलत है। दैट्स द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू दैट ऑल द 3 दोषास विल बी इन्वॉल्वड इन दिस। ठीक। यस अच्छा, यस। एक जैसे वो आपको होता है ना कि एम्स में अवेलेबल है कि नहीं है, ये जेनेटिक टेस्टिंग है एम्स में भी अवेलेबल? तो फिर मेरे एक करवा फ्रेंड ने, सकते हैं लोग। हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने कराया था, और रफली अराउंड वहाँ पे 15,000 के आसपास उस टाइम ओ उसके गॉड, चार्जेस लिए थे। सैंपल तो वही 15 तो बेंगलोर ही बहुत हो जाता है गया ना। इसका।
हाँ 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 सैंपल तो जहाँ इसका तक ना मुझे पता बैंगलोर ही है जाता है इन usually। बैंगलोर आई हैव हम्म। recommended for few of my patients in Bangalore in Narayana Netralaya. If anybody is in Bangalore they can go and get it done. यहाँ पे 7 से 8 हज़ार में हो जाता है. Sorry for But the interruption. yeah, When I हेलो did 5 years ago, so I did a maximum 5,000 in AIIMS Delhi. okay, it's good. 5 years back. अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है. Anyway, it can be even better if that test is repeated today. हाँ वही है ना, जैसे जैसे वो रेट भी फिर कम बट होते जाते हैं, डोंट फॉल उसका भी बिहाइंड दिस. मैं लक्ष्य बोलूँ बना। ना, अगर मुझे एक जस्ट दिस इज फॉर एवरीवन, इफ आई हैव बीन गिवन ए choice to choose something between getting genetic tests or doing yoga, practicing yoga, meditation and all, keeping myself happy, I will choose the second option. Genetic test कराने से भी ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है. Then why do we be so specific about genetic testing, going behind it and spending lot of money and just to know which gene is affected? क्योंकि जब तक वो इलाज भारत में आ जाएगा तब तक हम बूढ़े हुए रहते हैं, उससे ज्यादा फायदा भी हमें नहीं मिलने वाला है. और ये आपकी अगली जनरेशन के लिए शायद मददगार हो सकता है. इफ यू डू जेनेटिक टेस्टिंग नाउ, योर प्रोजेनी कैन बी डिटेक्टेड. फिर भी डॉक्टर्स लोग वहां पर भी कराएंगे कंफर्म करने के लिए कि क्या जो आपके पापा को था या मम्मी को था सेम आपको भी आया है करके. सो दैट इज हाउ इन ridiculous foolishness the medical system is going on. So I don't recommend anybody simply to waste, especially who are from poor background. Socio-economically जो भी poor है, आप जेनेटिक टेस्ट के पीछे मत पड़ो. उससे अच्छा रोज खुद को खुशी रखने के लिए या कुछ स्किल्स अपनाओ. जैसे आई वॉज कंग्रेचुलेटिंग तरुषी on a couple of days back that Divyability Foundation is doing lot of things to enhance the stress, स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल. आप जॉस सीख लीजिए, एनवीडीए सीख लीजिए, आप पाइथन हो सकता है सीख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्क्रीन रीडर के जरिए काम करना सीख लीजिए. ऑल दीज थिंग्स आर द रियल मेडिसिन इन माई सेंस. जहां तक मुझे जितना खुशी हुआ था जिस दिन मैंने एनवीडीए सीखा था या टॉकबैक सीखा था, उतना खुशी से मुझे लग गया था कि मेरा आंखें ही वापस आ गए. That's what really works inside this. Don't be trapped inside these kind of diagnosis, genetic testing and all. ज्यादा मददगार नहीं है. आप बार बार डॉक्टर के पास जाते रहोगे तो डॉक्टर को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है. दैट इज द रीजन व्हाई दे टेल ओके लेट अस ट्राई दिस जेनेटिक टेस्ट. क्योंकि हर बार आंखों को देखते हैं, हर बार फंडोस्कोपी करते हैं, हर बार स्नेलन चार्ट्स पढ़ाते हैं तो आप कुछ नहीं पढ़ पाते हैं. रेटिना पूरा डैमेज हो चुका है. तो अब क्या ही बचा है हमारे पास ऑप्शन? एक ही ऑप्शन बच गया ना कि जीन टेस्ट करके देखते हैं, चलो ये भी कर लो करके. एंड डेफिनेटली डॉक्टर्स नो हेलो आफ्टर जीन टेस्टिंग यू विल नॉट बी गोइंग टू देम अगेन. Yeah, this is how. हेलो सर, गुड इवनिंग, गोविंद हियर. Yeah, good evening, Rohit. मुझे गोविंद बात कर रहे हैं. मुझे दो क्या क्वेश्चन गोविंद? है. एक तो आपने जो जो डिजीज बताए हैं वो हमारे आयुष्मान भारत कार्ड में ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है या नहीं. और सर इसके दूसरा लिए क्वेश्चन, हाँ हाँ, बोलिए और बोलिए. दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने न्यूरोलॉजी का बताया, जो एलन मस्क का टेक्निक है, वो अगर कोई बर्थ से ब्लाइंड है तो उसके लिए हाँ काम आ सकता है क्या वो ट्रीटमेंट? और या जो बर्थ से ब्लाइंड है उनके लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है? या टू आंसर योर क्वेश्चंस वन बाय वन. फर्स्ट थिंग, आयुष्मान कार्ड के अंदर ऐसा थेरेपीज ही होंगे जो प्रूवन है. तो आपकी आंखों के लिए अभी तो सर्जरी से अगर ठीक हो सकता है तभी डॉक्टर लोग उसको चुनेंगे. और जरूर ऐसी सर्जरीज जिससे आपकी आंखें ठीक हो सकता है, दे कैन बी क्लाइम्ड अंडर आयुष्मान कार्ड. लेकिन आयुर्वेदा थेरेपीज, ये जो मैंने बोला ना, ऐसा ही इम्यून बूस्टिंग थेरेपीज, ये सब आयुष्मान कार्ड के अच्छा, अंदर नहीं आएंगे. First thing. ओके. And secondly, when it comes to this Neuralink, this second sight और brain को चिप डालने वाली जो भी है वो टेक्नोलॉजी, वो थियरी के हिसाब से सभी में काम करेगा. जो भी बाई बर्थ ब्लाइंड हो, जिसको आंखों ही ना हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिसको आई बॉल्स ही नहीं रहते, दैट इज ए सीवियर हाँ, सही. डिफेक्ट. हाँ, आई बॉल्स है हमारे पास, वो खराब है. लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिसको खुद आई बॉल्स भी नहीं रहते, ऐसे लोगों में भी वो काम करेगा. लेकिन ये सिर्फ थियरी है, इसको प्रैक्टिकली रिसर्च करके प्रूव करना पड़ेगा, बाद ही हम इसको ट्रीटमेंट के नाम पे मान सकते हैं. या आई थिंक और एक क्वेश्चन था, आकाश, जो बर्थ वी ब्लाइंड आर होते हैं ओवरलोडेड विद द उनके लिए. टाइम. हाँ या और एक क्वेश्चन था मेरा, जो बर्थ ऑन ब्लाइंड होते हैं उनके लिए
कौन सी नहीं सर, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? है, नहीं है, नहीं है। आपके लिए यही एक उम्मीद है कि जेनेटिक थेरेपी काम कर सकता है आगे के दिनों में। और ये प्रोस्टेट, रेटिनल प्रोस्टेट के बारे में जो मैंने बोला, प्रोस्थेटिक रेटिना, ये काम कर सकता है हाँ। न्यूरालिंक। और अगर Okay, हमारे how हमें many? अगर ये रिकॉर्डिंग वापस सुनना है तो कैसे सुन सकते हैं? आप ये क्या? कहीं कुछ मतलब हाँ, इट अपलोड विल करोगे? बी अपलोडेड इन द यूट्यूब फ्रॉम दिव्याबिलिटी फाउंडेशन। दे विल बी शेयरिंग द यूट्यूब Yes, लिंक। yes. हाँ, Yeah. ओके सर। So how many questions we can take more because we are getting short of time. नो, जो भी हैंड रेस किए हैं उनके लिए ले लेंगे, क्योंकि मेरा भी टाइम हो Okay. रहा है। एंड यू डू वन Okay. थिंग श्वेता जी, आप अपने जो दिव्याबिलिटी ग्रुप की लिंक है उसको शायद हो सके तो चैट में डाल दीजिए, ताकि लोग आपके ग्रुप में जुड़ जाए। या यूट्यूब लिंक, यूट्यूब चैनल की जो लिंक है उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे लोग, उसका लिंक को चैट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए, ताकि जब भी ये Okay. वीडियो Okay. अपलोड होगा देन दे विल बी अपडेटेड अबाउट इट। Sure, sir. तब तक Akash, you can ask your question. After that, Vatsila ma'am is there. So, नमस्कार सर। नमस्ते सर आकाश बोल रहा हूँ। मैंने कल भी पूछा था, मतलब उसके आप ट्रीटमेंट थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा कि जैसे मेरा प्रॉब्लम है पर्दा का, आपने बताया रेटिना डिटैचमेंट इसको बोलते हैं। तो ये हमारे घर में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है नहीं आँख का, तो क्या ये जेनेटिक हो सकता है? और अगर हम शादी वगैरह करें तो आगे क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब कैसे, क्या ये सर, आगे भी ये हो सकता है? सुपरफिशियली जो आप बोल रहे हैं, तो उसको सुन के तो मुझे लग रहा है ये जेनेटिक ही है। लेकिन एग्जैक्टली ये जेनेटिक है या नहीं है, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग करवाना होगा। मैंने बोला एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको पेडिग्री चार्ट बोलते हैं। इसको करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच में आपके फैमिली में किसी को भी नहीं था। और देखो, लोग जब भी नॉर्मल दिखते हैं उसका मतलब वो नॉर्मल नहीं होते, वो कैरियर भी हो सकते हैं। तो आप ऐसा सोचे होंगे कि आपके फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कैरियर्स तो हो सकते हैं ना। बिकॉज ऑफ देम हाँ, यू माइट तो हैव काफी बीन टाइम सफरिंग से विद मतलब रेटिनल कहीं डिटैचमेंट। पीढ़ी में देखा तो वो वैसा देखने को मिला नहीं। वही वही किसी अभी को भी थोड़ा नॉर्मल भी। लोग होते हैं, जैसे कि आजकल भी भारत के जो 142 करोड़ लोग हैं, वो यस। लोग भी कैरियर हो सकते हैं। एवरी साइटेड पर्सन कैन बी अ कैरियर। So that's the reason why pedigree chart is must to detect whether it is a genetic disease or not. और फिर आपका रेटिना डिटैच होने के लिए कुछ तो वजह होना चाहिए। फिर ऐसी कुछ वजह मिल गया डॉक्टर्स को, तो वी कैन कॉन्फिडेंटली टेल दैट इट इज नॉट ए जेनेटिक डिसीज। मान लीजिए आपको एक बुखार हुआ था, वो डेंगू हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, उस बुखार की वजह से आपका रेटिना डिटैच हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज। पीलिया की वजह से भी हो सकता है सर ये? किसकी वजह से? पीलिया की वजह से, आई पोलियो डिडंट गेट की, यू। पोलियो जो होता है पोलियो की पोलियो। वजह से अगर होगा तो भी ये जेनेटिक ही है। आपको ओके, पोलियो है? बचपन में हुआ था आपकी प्रॉब्लम कौन से सी पहले। लिम्स अफेक्टेड है आपका? मसल लिम कुछ अफेक्टेड है? हाथ पांव नहीं, अब तो कुछ? प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पैर में हल्का फुल्का है, मतलब चलने में हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो लगता है, हो बाकी तो सकता है ठीक है। ये पोलियो के जरिए भी हो सकता है, तो वो भी जेनेटिक बन गया ना। पोलियो इन्फेक्शन ओके। अगर बर्थ, जन्म के बाद हुआ था, तब ये नॉन जेनेटिक है। पोलियो ही खुद आपको जेनेटिकली आया है, तो दिस कैन बी ए जेनेटिक। हाँ, पोलियो का प्रॉब्लम मेरे में भी रहा था थोड़ा, एक आध बार अटैक मेरे भाई को भी हुआ था ऐसे पोलियो का। देन इट इज जेनेटिक। और विच प्लेस यू बिलोंग टू, वो एपिडेमिक डिसीज बोलते हैं, एंडेमिक डिसीज बोलते हैं, जो कुछ जगहों पे हमेशा रहते हैं। तो आपके जगह पे पोलियो की लोग ज्यादा रहते हैं, तो आपको भी पोलियो हुआ है, देन योर आई कंडीशन इज नॉन जेनेटिक। ओके। हाँ, दिस इज हाउ वी और असेस। सर एक काम इसके करो, बारे में। आप मेरा नंबर ले लीजिए, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। यू कैन स्पीक टू मी ओके, इंडिविजुअली, आपको पूरी डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। योगा हाँ, के बारे में बता दीजिए, इसके लिए मतलब अरे कौन सा बहुत बोला है जनरली ना योगा? जी। हाउ ठीक है, मोर यू ठीक है वांट टू सर, नो? थैंक यू सर। वी कैन स्पीक इट लेटर। या yeah, Jyoti ma'am, you asked in chat, I think, to ask the question. If you can unmute. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मुझे आरपी प्रॉब्लम है, बट मेरे हस्बैंड साइटेड हैं। ओके। सर मेरी एक 4 साल की बच्ची है। हाँ हाँ, यू तो जस्ट स्पोक मी यस्टरडे, राइट? या उसको भी आरपी पॉजिटिव हुआ है क्या? नहीं 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 सर, ओके येस्टरडे आई एम नॉट टॉकिंग टू यू।
Okay, yeah, fine, then fine. Go या ahead. तो हाँ, सर मैं ये जानना चाहती थी कि क्या इन फ्यूचर मेरी बच्ची को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? अभी तो वो बराबर देखती है, पढ़ती है, सब कुछ करती ओके। है, उसको कुछ आपके भी मम्मी की प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मम्मी जी को या पापा जी को था नहीं आरपी? सर, मेरी फैमिली में मदर की तरफ से या फादर की तरफ से किसी को भी आरपी प्रॉब्लम नहीं है। और ओके, एटलीस्ट मेरे दो जनरेशन। भाई और एक बहन है, उनको भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ही आरपी हुआ है, कैसे आई डोंट नो। या या इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। उसके लिए वजह हो सकता है, कोई तो कैरियर होंगे आपके मम्मी या पापा दोनों में से। तो इन दैट केस 75% चांसेस आर देयर दैट योर बेबी इज टोटली नॉर्मल यस और सर। योर बेबी कैन बी ए कैरियर। इन्फेक्टेड शायद नहीं बन पाती है। अगर आपको क्लियरली पता करना है तो जेनेटिक टेस्ट ही करना पड़ेगा। जितना इंफॉर्मेशन आप दे पा रहे हो, सो उतने से मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 75% चांसेस है कि वो नॉर्मल लड़की होगी आपका, और 25% चांसेस है कि वो कैरियर बनेगी। कैरियर का मतलब है वो नॉर्मल ही रहेगी जिंदगी भर के लिए, लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो वापस रिफ्लेक्ट हो सकता है। नहीं सर, दूसरा क्या है, मेरे फादर 75 ईयर्स के थे और हम्म। मेरी मदर अभी 78 ईयर्स की हैं, लेकिन दोनों का विजन अच्छा। यस सर, फादर फैमिली में भी किसी को भी नहीं, आरपी ये मैं प्रॉब्लम नहीं बोल था। रहा था ना, सी कैरियर वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर अच्छा ही रहते हैं। जी सर। इनका आखिरी सांस तक 100% विजन रहता है, लेकिन उनके अंदर जो जीन्स है आंख के लिए, आंख वाले, रेटिना वाले, वो खराब रहता है। लेकिन वो फिनोटिपिकली अच्छा रहते हैं, लेकिन जीनोटिपिकली वो कोडिंग में गलत रहता है। वो जब अपने बच्चों को वो कोड मिलता है तब वो लोग बीमार बन सकते हैं। दैट इज हाउ कैरियर वर्क्स। Okay, then no worries. You just get a pedigree chart या family tree done. Then only you can be very clear about your daughter. उसका जेनेटिक टेस्ट करवा दीजिए अगर इतना भी आपको कॉन्शियस है तो। ये सर, और दूसरा सर, मुझे क्या है, मेरा विजन अप एंड डाउन होता है सर। और कभी कभी अच्छा देखती हूँ, कभी कभी शेडो आ जाती है। भाई इसके लिए बहुत वजह हो सकता है। एक तो आपके रेटिना में बहुत चेंजेस, डायनामिक रहेगा वो धीरे धीरे, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ फ्लॉटर्स एंड डेड सेल्स कैन कम इन फ्रंट ऑफ योर रेटिना टू ऑब्स्ट्रक्ट योर विजन। और ये जो ऐसा ऐसा मैंने बहुत लोगों में सुना है, जो लोग जब खुश रहेंगे तो उनको ठीक दिखेगा, और जब वो सैड रहेंगे तो उनका विजन थोड़ा ब्लर हो जाएगा। तो ऐसा भी आपके साथ हो रहा हो तो try to be stress free, try to be happy, enjoy your life. That can be one solution. And as a part of physiology, as a part of normal changes or metabolism, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। Sometimes you will be having good clarity of vision and sometimes you will be having blurred vision. ये transition phase है ना, इसीलिए वो सब चलता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you, thank Sir, you. Ashok here. Okay. One small question. Yes, sir, please. Yesterday I speak with you like Yeah. regarding we are the three people are having the RP. We yeah we three having the siblings are having the RP. Okay. And in that we have kids also. Okay. For three people also we have kids. I have two and my brother has one and the sister has two. So right now, till now there is no issues like with them. Okay. 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 And I want to know how to check it. It is. Where are you from, Ashok sir? कहाँ से हैं आप? I'm from Udupi. Udupi. So you can go to Manipal, no? You can go to Kundapura or Manipal. You can get your genetic testing done there. Allihog Madsbidi or in Mangalore KMC, everywhere it's done. Okay. Genetic test only. Genetic test, you have to get it done. That's it. For the kids. Yeah. Then only you will be very sure if they are infected or not. Okay. Venu actually have raised his hand from long, so he's want to ask. Yes. Okay. Just a second. Hey, mail baro Pradeep, mail baili, terrace mail din baili. यहाँ तो यहाँ सेंटर में दो कर सकते हो। Hello. Yeah. Am I audible?
Hello. Am I audible? Yeah. Yes. Yeah. Thank you, But Shweta. Yeah. Hi, sir. just a minute. I think sir is not here. Just a minute. Oh, okay. Hello, I'm very sorry I got disconnected. Yeah, Shruti, Shweta ma'am, you were telling about. Yeah. Venu. Hi, sir. Myself, Venugopal. Yeah. Good evening, Venugopal. Hi, sir. Nice to Yes. meet you, and I appreciate your patience in answering. Actually, I'm a late blind. I have lost my eyesight in 2020 Okay. due to rapid angle closure glaucoma. Glaucoma. Okay. So sad. Yeah, rapid Yeah. angle closure Yeah. I glaucoma. got it. I have lost my. Yeah, actually, I have lost my eyesight in a very short time. Okay. Very short time. Okay. It's been like Yeah. It is the 2 to 3 actual. months. Yeah, that's it. I'm getting your point. Yeah. Now, any treatments done? Surgery could have been taken, or LASIK could have been done. No surgery, sir. No surgery, no tablet, nothing. Okay. Actually, it was done due to some optic nerve damage. Yeah. No, it was. I have roamed around India. Where are you from? I'm from Andhra Pradesh, Visakhapatnam, sir. Okay, fine. Oh, you have visited Shankara Hospital. It's there in Hyderabad, Yeah, I have undergone Yeah. treatment in Yeah. LV Prasada Institute. Oh, that's good. See, the thing is, Yeah. I explained about glaucoma yesterday. Rapid angle closure glaucoma is an acute condition. Yes. The onset is insidious, and it progresses so fast, and it damages your optic nerves. तब क्या कर Yes, सकते yes. थे in It that was scenario? already done, Yeah. damaged, and Then I have been reversing it is rehabilitated. so difficult. Yes, It yes. happened in both of eyes. Yeah, in the both eyes. Both eyes. Bilateral. First, It's called bilateral. yes, Yeah. bilateral. Yes. Yeah. It is 360 degrees cupping has done inside. Yeah, there are So multiple cases. Yeah, I have come across many such patients whose vision is yes. lost, and you will be just prescribed some eye drops to prevent Yeah, pain in the eyes and burning sensation in the eye. That is Yeah. the highest thing what can be done. There can be nothing more can be Yes. done. But Yeah. I have a fear, sir. I want Yeah. to, Yeah. you need to clear that doubt. Yeah. Actually, you have said that carrier and that all right. Yes. I have also doubt, so that's the thing. I don't want to, Yeah. go for marriage or something. No, you can. Because No worries in that. You can marry uh, a healthy lady who is not suffering with any genetic disease. And most of the okay. time, glaucoma is not inherited genetically. Glaucoma is caused due to accidental mutations within the cells. आपको Yes. पेरेंट्स की तरफ से नहीं आया है. It's not inherited from your parents. There is no history, sir. Yeah, that's Actually, what. my grandmother is there. My father's mother. She has, You do one thing. You he- can go for your genetic testing in the LV Prasad. There, if it comes normal, then you can marry anyone fearlessly. Just don't marry a lady who is also blind due to genetic disease. That can add risk to you. If your genetic testing comes normal, most probably it would be normal, because all the genetically mutated diseases will progress slowly. If it is acute and insidious, just like in your case, the vision is lost within 2 months, then definitely it is not due to genetics. Then if you marry a healthy woman, you can get healthy progeny, healthy kids. Yeah. No issues in Actually, that. sir, there was no family history. I Yeah. have 3 sisters also, and little cataract, those kind of things are there, Yeah, they which are is quite common. They are quite regular. common. Yeah, no worries. Yeah, They are quite quite common. common Usual. diseases. Yes. But this thing was not there. But my grandmother is there, na, my father's mother.
she lost her eyesight at 85 years old, 85 to 90 years old That will at not the time impact you. That will not before. impact you. Yes. Yes. Yeah, Oh, no, that okay. will not impact you. No worries. You just get my number from them, and you can feel free to contact Definitely, me sir. anytime. Definitely. Yeah, I'll no get worries. that Yeah, genetic. yes. What is that? Genetic? Genetic testing. I'll just help you. No Genetic worries. testing, sir. Yeah, Oh, yeah. okay, sir. Okay, sir. Yes, Shweta I'll get ma'am, it is done there and anyone I'll waiting? share the report. Yes. No one Thank is you. waiting, but Yeah. I think Rajendra sir asked in the chat to ask the Yeah. question. If he is there, he can ask. And this is the last question. We'll be Yes. taking this because we are short of time. Hmm. And by then, are there people who are not in any of the disability groups? मैम वन थिंग आई वांटेड टू आस्क Yes, please. Yeah, sure. ये आरपी से रिलेटेड कुछ ऐसा भी चीज होता है जिसको अवॉइड करना चाहिए जनरल फूड्स में वो नहीं टोबैको सर। टोबैको तो जरूर अवॉइड करो। हाँ वो सब तो आदमी करते ही है टोबैको, बट और अल्कोहल। खाने पीने में कोई स्पेसिफिक चीज जो रेगुलर खाने में हम लोग को जो नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए ऐसा कुछ आरपी के लिए स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए है। और जैसे कि मैंने बता रहा था, ओवरऑल हेल्थ जब होलिस्टिकली आप हेल्दी बन जाओगे तो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट आरपी पे डालेगा। आपको अच्छा महसूस होगा, तो आप अच्छा देखे जैसा आपको भी लगता है। दैट्स इनडायरेक्ट इफेक्ट। देयर इज नथिंग व्हिच कैन डायरेक्टली हेल्प इनटू रेटिना व्हेन इट कम्स टू फूड। Only in the case of vitamin A deficiency, papaya, carrot, and other things help. That palak and other things. But in genetic cases, nothing can help from food. वो Yeah. ठीक है श्वेता, can we wind up? Tarushi ji. Yeah, I think we can wind up. Shweta, is there anyone who is lined up? Oh, right. अभी कोई hand raise तो नहीं है, तो I think it's done. Okay. मैम कुछ ये भी Hmm. ऐड कर रहे हैं ना ग्रुप में, अगर काफी लोग नहीं होंगे then I'll share the group link also, but I've shared the Just put YouTube it in channel the link in the chat chat. box, no? Yeah. Okay, so I believe there majority of the people are in the webinar group, right? Just check if they have subscribed to our channel. If they have not, so they can check the link in the chat box and they can subscribe. So they get whenever this recording is getting uploaded, they can get the notification and they can watch it. Okay, so you can go through the chat. We have shared the YouTube link. Just go on the channel, have a view, and subscribe it so that we will be posting such kind of recordings. So it could be helpful for you as well, for your friends. And thank you so much, sir, for giving your valuable inputs and how you guided people in different aspects. And thank you for your time and patience. Thank you, everyone, for joining. Have a good night. Yeah, it's my pleasure, Thank and you, thanks Ritesh for sir. the Thank you. opportunity. It was Yeah. Thanks a lot. Nice webinar. Yeah, thanks a lot. And one concluding note to everyone: just stay happy. Never bother what people say about you. And if treatment comes, definitely it will come to everyone. It's not that nothing can be kept secret in this modern world. Don't be victim of any fake assurances or claims. Just stay happy, stay aware. Thank you again. Thanks for the opportunity. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Shweta, for managing so well. Thank you, everyone, for joining and giving your time.